That's why they are not responsible Permission, for your act. they did not give permission to disseminate the frivolous or fake scandals of any random person. I am sorry, sir. I'm lost here. Anything else you want? No, sir. I think I'm finished. Sir, can I add something? Yeah, please, sir. Sir, basically this trial has been exercised on Wednesday as well. ये Wednesday को भी इन्होंने यही ट्रायल थी, इसने ये आर्गूमेंट किया था, मैंने इसको रिवर्ट किया था. Basically, my question for you is that if Elon Musk is trying to rebuild or reconstruct Twitter, Yes, sir. and he is saying that he is basically deleting the fake accounts, fake words. Yes. None of the, even the prosecution hasn't defined the artificial intelligence. You haven't defined the artificial intelligence. Yes, sir. I would like to quote again. There is a film, if you allow. There is a film. There is a film of movie, basically movie of Will Smith, I Robot, in which artificial intelligence software is used, and with that artificial intelligence software has caused a war between human beings and robots. Yes, sir. And one robot has evolved with some emotions, and he defended that. So basically, you need to give some argument. If there is not a question of law or question of us, you need to build your story. You need to support your argument. You need to build. If you are, it's been the third day. I have been kept saying that don't put some words in the mouth of jury or chair or in other panel as well, कि आप उनको ये ऐसा रास्ता ना दिखाएं जिसकी वजह से वो आपसे ऐसे आर्गूमेंट्स पूछें. अभी तो हम इस पे बात ही नहीं कर रहे कि आपके मूड प्रॉब्लम में कितनी इश्यूज हैं. आप ट्विटर की मिसाल दें, आप फेसबुक की मिसाल दें, लेकिन आपको स्टोरी बिल्ड करके दें. आपको ये कहानी करें, आप जैसे कहानियाँ कराते हैं हमें, इसी तरह आपने कहानियाँ करानी है. और आप बेसिकली आपका आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. इस आपके इश्यूज़ के अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी अच्छी, सब चीज़ें अच्छी, लेकिन आप अपने जो सपोर्ट नहीं कर रहे, आपकी इश्यूज़, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स है सर ऐसी. ठीक है. और इसमें जो ट्विटर की मिसाल है, ये बात लंबी हो जाएगी, मैं आपको टाइम भी नहीं ज़ाया करूँगा. बेसिकली ये मैंने उस वक्त भी कहा था, परसों चौथ में ये बात हुई थी. सर अब वेब 3 पे चली गई बात, वेब 2 भी छोड़ दिया. हम वेब WWW के स्टूडेंट रह चुके हैं. वेब 3 के ऊपर इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, मैंने आपको कहा था आप सर्च कीजिएगा, मैंने उस वक्त भी आपको ये कहा था. सर मैंने इनको वेब 3 के बारे में बताया कि गवर्नमेंट की एक नई पॉलिसी आई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो रेगुलेशन आ रहे हैं, आप उसको पढ़ें, इसका SOPs पढ़ें, तो देयर इज़ अ पूल ऑफ, आप ये कह सकते हैं नॉलेज, इतनी नॉलेज है जिसको आप इस आर्गूमेंट में सपोर्ट कर सकते थे. लेकिन आपके रिसर्चर ने के भी सर नेगेटिव मार्क्स काउंट हो गए, उन्होंने नहीं किया, नहीं सपोर्ट किया, क्योंकि सारा कसूर रिपोर्टर्स का नहीं है, रिसर्चर्स ने, दोनों पैनल्स के रिसर्चर्स ने. ठीक है, कंटिन्यू. May I add one? Yes. Sir, the ethical point of artificial intelligence is still debatable, and there is a high conceivability of risks in artificial intelligence, and we don't know the rules yet, because the artificial intelligence is future, and we don't have any precise. So you haven't mentioned there is a regulatory authority regarding the artificial intelligence. Is there an authority? Right. Who the hell is responsible for regulating artificial intelligence around the globe, or in Pakistan, or even in Wadi, or in Sir, Punjab? even that's debatable. If that's debatable, you have your researcher has research about the rule and regulation of artificial intelligence. There is a course regarding Atlantic 25. Anusha Shagan is of quoting the law is part of it. She is posting daily regarding her course of Harvard Law School and Michigan Law School. Basically, she is getting that course from with online learning as well. So basically, my point is that you are not researching. Your research is not up to mark so that you can compete with other institutes. Your research is not up to mark because there is no researcher at all. My contention is that simple as research के ऊपर हम फिर research methodology के ऊपर क्लास कर लेंगे, आप कंटिन्यू करें. Thank you, sir. ये next co-motor. Assalamu alaikum. I am Sher Ali and I am here in front of respectable judges to argue issue number 2 from defense side.
issue number 2 is that whether Mr. Salim's right to private life and family was breached or not. My answer is that the state was not responsible whatever happened for public interest, and so the state cannot be held liable for that, because the burden of proof is on prosecution, and prosecution has not given any rational argument yet. If Salim wants to remove that news or trend from ARIIA, then he must report that content to our admin, and then he will report that content to our admin, and then we will call a meeting of officials and experts of our company, and also some officials from government of Pakistan will be invited. तो सर, अगर मिस्टर सलीम के जो राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज हो रहे थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ये चाहिए था कि वो रिपोर्ट करता अपनी न्यूज़ या जो है उस ट्रेंड के बारे में, ताकि जो कंपनी वाले हैं वो उसको जो है पकड़ लेते। लेकिन मिस्टर सलीम ने इस तरह का कोई भी स्टेप नहीं उठाया। In that meeting, we shall discuss the matter and shall try our best to resolve the problem. अगर उसने अपना मैटर या स्टेप लिया होता, रिपोर्ट किया होता, तो उसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी जो है उसके जो मतलब के प्राइवेट राइट्स इन्फ्रिंज हुए थे, तो उनको वो मज़ीद ना होने देते, क्योंकि अगर उसने इस तरह का कोई भी स्टेप नहीं उठाया मिस्टर सलीम की तरफ से, तो इसी वजह से हम ये कहेंगे कि उसने जो ये एलिगेशन लगाया वो ऐसे ही एलिगेशन लगाया खाम खा जो है ना एक स्टेट की डिग्निटी को ख़राब करने के लिए। तो इसी वजह से माय हम्बल सबमिशन इज़ दैट काइंडली रिमूव द एलिगेशन of liability or any infringement by a petitioner against respondent, and give recommendations to petitioner to file complaint, issue his issue to defendant, and department will resolve after observation. तो मतलब कि मेरा हम्बल सबमिशन यही है आप जजेस से कि अगर उसके साथ इस तरह का कोई इशू हुआ था, स्कैंडल हुआ था और उसके रेपो को ख़राब किया जा रहा था, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्ट करें, और रिपोर्ट करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से या जो कंपनी की तरफ से जो है ना मज़ीद स्टेप्स उठाए जाएंगे। प्रेयर सर ये है कि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उन एलिगेशंस को रिमूव किया जाए, और अगर उसके राइट इन्फ्रिंज हुए हैं तो वो जो है अपने सबूत लाए, ताकि मज़ीद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उस कंपनी की तरफ से स्टेप्स उठाए जाएँ। You have started your argument with that question about rights. Yes, sir. Same thing, same word that I have said earlier, that none of you have defined what kind of rights have been infringed. There are hundreds and thousands of rights if you can divide and divide and redivide. And you are saying that there is no, the state is not responsible for giving the public private rights or something like that. Yes, sir. How can you have read Constitution of Pakistan, you have read the writs, then where you can provide some justification regarding the public interest litigation. State is providing public interest litigation. State is providing the right to defend the dignity and honor as per Article 14 and UNDHR, ICCPR and other convention as well. Pakistan is a signatory member of that convention or other declaration as well. So basically my problem, my question, I am not satisfied with your argument that what are you trying to say, state responsible नहीं है। क्यों state responsible नहीं है? कि जब स्टेट ने अपने आइन में लिख दिया, स्टेट ने साइन कर दिए UNDHR के अंदर, स्टेट ने आपको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए भी प्रोवाइड करती है, वो पब्लिक
एक तो बड़ी बात है सर, इन्होंने डिफाइन ही नहीं किया कि ये केस डिफेमेशन क्या है, इसकी जुरिस्डिक्शन क्या है, आया ये सिविल केस है, ये क्रिमिनल केस है। हमें तो जुरिस्डिक्शन से शुरू होना था। आप लोगों को पिछली दफ़ा भी कहा था सर, इनके ये भी डिसाइड नहीं हुआ। एक ने लास्ट टाइम भी कहा था कि आया इस पर FIR होगी, डिफेमेशन होगी 499 से 510 तक आप डिफेमेशन फाइल कर रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं। आया आप टॉर्ट का ये केस है जिसमें राइट्स इंक्रीज हो रहे हैं, आया ये सिविल केस है, ये खिचड़ी भी बनेगी। जुरिस्डिक्शन से स्टार्ट होना है। पहले आपको कहा था कि वो मूड्स के ऊपर, मूड की प्रॉब्लम के ऊपर, जो आपको जुरिस्डिक्शन के ऊपर जो आपकी डेफिनेशन थी वो नहीं था। ठीक है, स्टैच्यूट राइट्स, इन्फ्रिंजमेंट, एक्सपर्ट्स, रिसर्च, ठीक है जी सर। नेक्स्ट जी, आपने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने अनाउंस कर लिया है, सर ने तो आई विल लाइक टू टीम सी जो है जी, उसको दोबारा बुलाएंगे या उसको बाद में? तो टीम सी से वो सर 1 मिनट का वो जो सर के क्वेश्चन थे वो आंसर कर लें अगर आप जी सर। मौका दे दें। टीम सी ये अभी 9th के तो नहीं, 7th के हैं, इनका कोर्स ही नहीं पढ़ा इन्होंने अभी तक। टीम ए पूरी है जी, टीम ए अपनी टीम पूरी कर लें और टीम डी जो है वो भी अपनी टीम पूरी कर लें। All participants should be in uniform. D. ए और डी। Sir, in the evidence, it has been discussed once a fake scandal of celebrity named Slim, who was Pakistani national. सर बार बार आप लोगों को भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर। इन्होंने अभी तक फेक की भी डिफाइन नहीं किया कि हु विल डिफाइन दैट देयर इज अ फेक स्कैंडल। मुड प्रॉब्लम की तरफ से गलती है, मेरी तरफ से गलती है, सर की तरफ से गलती है। फेक कैसे डिफाइन होगा? फेक स्कैंडल तो इमरान खान के खिलाफ भी है, नवाज शरीफ के खिलाफ भी है। आप फेक स्कैंडल को किस तरह जस्टिफाई कर रहे हैं? आप फेक कर रहे हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फेक स्कैंडल? ठीक है, लेकिन आप ये तो बताएं कि फेक स्कैंडल आया क्यों। आपने ये नहीं बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गलती की वजह से एक फेक स्कैंडल ने एक खबर को उठा के ट्वीट, जैसे कि सियासत के ऊपर, सियासत पीके है एक वेबसाइट है, उसके ऊपर से अगर कोई खबर आती है उसको रिवर्ट किया जाता है, उसको बार बार शेयर किया जाता है, हज़ारों इस तरह आप अपने आर्गूमेंट को, जो सर वाली बात थी वो यहीं से। फेक स्कैंडल को भी आप लोगों ने नहीं बताया कि क्यों आया था फेक स्कैंडल। उसकी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, गलती थी, सॉफ्टवेयर की गलती थी। आप फेक खबर को डिफाइन करें, सोशल मीडिया को डिफाइन करें जी। बेसिकली ये फेक स्कैंडल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गलती से ही आया था ना। जी जी ठीक है, उनके साथ तो जस्ट यानी कि कोड वायरल, वो एक चीज़ वायरल हुई, ठीक है, सिर्फ यानी कि सडनली बाय द मिस्टेक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो पोस्ट हुई, ठीक है, और कंटिन्यूसली उसको वो शेयर करते रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर ने किया, लोगों ने नहीं किया जी सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर ने वो चीज़ उठाई, उसको शेयर किया और ये समझा कि वो दुरुस्त है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं क्योंकि आप बेसिकली प्लेंटी ऑफ साइट्स हैं, आप ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर की तरफ से गलती हुई है, ह्यूमन एरर के अंदर 99.9%, आप बेशक 99.9% भी कह लेंगे तो कोई इसमें वो रॉकेट साइंस नहीं है, गलती हो जाती होती है, सॉफ्टवेयर से गलती हुई, ह्यूमन से गलती नहीं हुई। ये आपके आर्गूमेंट होने चाहिए थे, जो कि सर का क्वेश्चन था, जो कि आप अपनी जजमेंट के साथ बाद में जस्टिफाई कर रहे हैं जी। एक्सप्लेन करें सर। बेसिकली ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसकी गलती की वजह से ही सर ये पब्लिश हुआ है सोशल मीडिया पे, ठीक है, और एरर ड्यू टू एन एरर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इट इज़ बीइंग पब्लिश्ड एंड देन पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल शुड शेयर कंटिन्यूसली दिस स्कैंडल। सम अप करें अब आप 1 मिनट। Sir, I would like to ask you a question of Hasmi sir, which is according to case law. Sir, Pakistan national went viral that is having affair with an unknown girl. See, sir, in the society, the affair with an unknown girl is not, इसको सर अच्छा नहीं समझा जाता, ठीक है, तो किसी भी स्टार के लिए और बाकियों के लिए अननोन ना हो। अफेयर को अच्छा नहीं समझा जाता, अफेयर को अच्छा नहीं अननोन गर्ल के साथ अफेयर को अच्छा नहीं समझा जाता इन आवर सोसाइटी। नॉन के साथ हाँ वही बात आ गई ना सर को, ये मैंने पूछा नॉन गर्ल के साथ तो अफेयर ना हो। try to get the point. हाँ Affair is any woman Any girl. is not Any girl. considered good or moral.
अफेयर विद एनी अननोन गर्ल, के साथ है नोन नहीं सर, अफेयर विद एनी गर्ल, इसको सर अच्छा नहीं समझ आता। तो अब इसमें सर जब अफेयर विद एनी गर्ल पब्लिश हुआ, ठीक है, तो उसकी रिस्पेक्ट को भी नुकसान हुआ, डिग्निटी को भी नुकसान हुआ, ऑनर को भी नुकसान हुआ। इन केस लॉ में सर ये मेंशन्ड है that the main thing which a person have that is respect, honor and dignity when the repute will disturb। सर इसमें बेसिकली डिस्टर्ब हुई है जब स्कैंडल यानी कि वायरल हुआ है अबाउट अफेयर, तो मेरे पिटिशनर का उसकी डिग्निटी भी इफेक्ट हुई है, रिस्पेक्ट भी इफेक्ट हुई है, तो सर ये केस में सपोर्ट करते हैं। और इसके बाद सर इन एविडेंस इट इज़ मेंशन्ड दैट दिस काज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस ऑन मिस्टर सलीम होम एंड फैमिली। उसके बाद जो आर्टिकल 35 है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो भी यही कहते हैं द स्टेट शैल प्रोटेक्ट द मैरिंग द फैमिली द मदर एंड द चाइल्ड। स्टेट शुड प्रोटेक्ट द फैमिली लाइफ ऑफ अ पर्सन। So it is my humble submission that आप कह रहे हैं कि affair that got viral, was it really the mistake of artificial intelligence, or someone has did by for his own interest or own popularity, to get the popularity or get the fame? sir it was basically the mistake of artificial intelligence because by Who established this, that was a artificial intelligence failure? sir because this is published by their software, this is got viral through because they had provided a platform to this scandal to being viral, so artificial intelligence is generally responsible for this. So your client has nothing to do with this. Your client has nothing to do with this. He didn't do anything to get the viral or to get the popularity. No sir. How? सर सर पहले भी मैंने आपको बताया कि कोई भी शख्स सर देखिए पहले भी बताया कि अफेयर विद एनी गर्ल, ठीक है, अच्छा नहीं समझ रहा था, ठीक है, जब वो पब्लिश हुआ, ठीक है, तो कंपनी को चाहिए था कि उस कंटेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट कर देते, उन्होंने डिलीट नहीं किया अकॉर्डिंग टू पिक ऑर्डिनेंस, ठीक है, तो उन्होंने डिलीट नहीं किया बल्कि उसको लगातार वायरल होने दिया, तो सर दे आर रिस्पॉन्सिबल व्हेन दे केम टू नो दैट एनी fake or scandal is being published through by their platform, so they should have to delete this, but they didn't. Who will decide that this scandal is right or wrong? Sir, You have to put application to them to stop the thing. You made that application. no. What next? So sir, it's my humble submission that the government of Pakistan and NWFIC is responsible about such action, so they should be fined according to section 20 subclass 1 of PICA Act 2016, which is which may the punishment is which may extend to 3 years and with the fine which is 1 million rupees. सर मूड प्रॉब्लम के तरीके लिखा हुआ था कि ये फेक स्कैंडल है, आपका आर्गुमेंट ये होना चाहिए था कि सर ने जो क्वेश्चन पूछा है वो बेसिकली मूड प्रॉब्लम ही को पूछा है, आपने कहा मूड प्रॉब्लम हमारी जो स्टोरी थी वो यही थी, आपका आर्गुमेंट ये होना चाहिए था, आपने मूड प्रॉब्लम को रिलाई करना था कि फेक स्कैंडल आया, और वैसे भी वो तो सर सेलिब्रिटी पॉपुलर था। Sir, what does it mean? They even don't have a command on mood सर problem. they haven't even reread the mood Yes. problem. बेसिकली ये रिसर्चर और इनकी तरफ से सर ये सिर्फ इन्होंने प्रेजेंटेशन स्किल के ऊपर फोकस किया है, रिसर्चर की तरफ से 0 मार्क्स हैं, क्योंकि रिसर्चर का ये अब एक मैं आपको सर पहले दिन खास साहब थे और हमारे पास एक आर्गूमेंट था, एक मूड प्रॉब्लम थी मर्डर ट्रायल, तो सीनियर गुलाम अब्दुल्ला उसने एक आर्गूमेंट दिया कि ये टेक्नोलॉजी एजुकेशन के लिए इस्तेमाल हो रही थी और उसकी वजह से एक मर्डर हो गई, पता नहीं वो क्या था, जैसे एक लफ्ज़ के ऊपर अपना पूरा आर्गूमेंट 2 इश्यूज डिफाइन करती है, तो इनको उस वक्त भी बताया था कि 1-2 लाख
लफ्ज़ के ऊपर भी आर्गूमेंट चेंज हो जाते थे। इन्होंने इतना बड़ा इनके पास इनके उसके अंदर DHR में डिफाइन है, आर्टिकल 14 में डिफाइंड है, इतनी बड़ी स्टोरी है, इन्होंने उसको रीड कर दिया। ये उसी के अंदर से क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी दे सकते थे, क्वेश्चन ऑफ लॉ भी दे सकते थे, इनके उसी के हिसाब से रिसर्च भी दे सकते थे, लेकिन इनके रिसर्चर को थोड़ा सा करना पड़ेगा, जो रिसर्च में थोड़ा 3C और B का। C के रिसर्चर्स कौन है आपके साथ, बाकी टीम मेंबर्स कौन से? जी वो ऊपर जाके बयान से नहीं कर सकते, बताया तो था। आप रिसर्चर हैं टीम C के? नो सर जी, पहले जो बनी थी ना मोटर उसी को सेम शेयर करते हैं। ये सर वो डेली चेंज हो रहा है, डेली चेंज हो रहे हैं डेली। वो हमें भी पता है कि आपको नहीं पता कि आपके आर्गुमेंट्स इटसेल्फ ये बता रहे हैं कि मुझे नहीं पता इनके आप कि वो कौन सर जी ये दो बंदे तो